یہ جو اپنے بچیوں کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہیں پیسوں کے لیے، تو جب دوسرے کے گھروں کے اندر جاتی ہیں وہ کسی کو کچھ بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو بلکہ اگر شاپنگ کے لیے کہیں جانا بھی ہوتا تھا نا، وہ جن کے پہلے 2-3 سگریٹ پی کے پھر جن کے فریش ہو کے پھر چلتی تھی۔ اس کی اصل میں کہتی کہ میری مما بھی پیتی تھی، اس کے ساتھ پیتے پیتے مجھے بھی عادت پڑ گئی۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شادی کرتے ہیں تو بعض کا گھر والوں کو نشہ وغیرہ دیا، جہاں جہاں چیزیں پڑی ہیں ساری اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل اشرف۔ ناظرین، فیصل آباد میں ایک اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ پیش آتا ہے جس کو سن کر آپ بھی اس شش و پنج میں مبتلا ہوں گے کہ اس پہ ہنسا جائے یا اس پہ رویا جائے۔ میرے ساتھ اس وقت شہزاد صاحب موجود ہیں جو کہ ایک کنسلٹنٹ کے تھرو اپنی شادی کرواتے ہیں، مگر ان کو جھٹکا تب لگتا ہے جب شادی کی پہلی رات ہی ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ان سے سگریٹوں کا مطالبہ کرتی ہیں کہ مجھے سگریٹ پینے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو حیرت کے جھٹکے ہیں وہ ان کی بھی انتہا نہیں رہتی اور وہ بڑھتے جاتے ہیں، اور ان کے تقریباً 4 سے 5 دنوں کے بعد وہ جو ان کی اہلیہ ہیں وہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور ان کا جو سارا ساز و سامان اور ان کے جو پیسے تھے وہ لے کے فرار ہو جاتی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اصل کہانی ہے کیا۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیسے شروع ہوتا ہے، آپ کس کے تھرو شادی کرواتے ہیں اور پھر یہ سارا واقعہ کیسے جنم لیتا ہے؟ یہ شعیب شاہ جو ہے اس نے اپنا یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل بنایا ہوا ہے، تو اس نے آپ ان کا آن لائن اسلامی نکاح کے نام کے اوپر ہے۔ اگر آپ ان کی وہ یوٹیوب نکال کر دیکھیں تو اس نے ایسے ان کے اوپر ایسی ویڈیو بنا کے رکھی ہوتی ہے کہ اس کا حق مہر جو ہے وہ 2.5 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، تو کہ ایسی ویڈیو بھی ہوتی ہیں، دوسرے بھی ان کے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو جب میں اس کو ملنے کے لیے گیا تھا تو اس نے جو مجھے ایڈریس بتایا غلام آباد کا، تو اصل میں تو وہ اس کا اپنا نہیں تھا جہاں سے نکل کے آیا تھا، بلکہ وہ اس کی ہمشیرہ کا، بعد میں پتہ چلا کہ ہمشیرہ کا ہے، اپنا تو اس کا گھر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں سے جب نکل کے آیا تو میرے ساتھ اس نے جو بات کی تو اس نے کہا کہ آپ کے جو شادی کا معاملہ ہے، آپ کی بچیاں ہیں، تو آپ ایسا کر لیں کہ وہ آپ کی بچیاں جو ہیں ہم ایسی شادی کروا دیں گے کہ آپ کی جو بچیاں بھی سنبھال لے گی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو کچھ پیسے خرچنے پڑیں گے، تو اس نے کہا کہ آپ کو تقریباً اس کے ساتھ جو طے ہوا ہے اس نے کہا کہ آپ 4.5 لاکھ روپے جو مجھے دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں۔ تو پھر میرے پاس مرغیاں وغیرہ تھی جو میں نے گھر کے اندر رکھی تھی، تقریباً ان کا خرچہ تقریباً 5 لاکھ کی تو میں نے مرغیاں لی تھی، باقی 3-4 لاکھ روپے اس کے برتن وغیرہ مختلف چیزیں اور 2 کمرے بھی بنائے تھے، اوپر کا خرچہ بھی تھا، 8-10 لاکھ روپے کا وہ جو ہمارا نظام گھر کا چل رہا تھا۔ تو جب پھر ہمیں ضرورت تھی پیسوں کی تو پھر میں نے ارجنٹ ان کو بیچ کر جو ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ روپے جو اکٹھے کیے۔ پھر اس کو کہا کہ میرے پاس 3.5 لاکھ روپے ہیں۔ اس نے کہا چلو مجھے 1 لاکھ کا چیک کر دے دو، اس کے اوپر 2 ماہ کا وعدہ تھا۔ اس نے شادی کروا دی، شادی کے جو 4 دن بعد جو ہے نا اس کو مجھے فون آیا کہ جو اس کو نا اپنی بیوی کو اس کی والدہ کے ساتھ بھیج دو ملنے کے لیے 1 دن کے لیے۔ تو میں نے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ تو جب میں نے بھیج دیا اگلے دن جو ہے اس کا مجھے فون آیا کہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ دینا ہمارا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا جو 1 لاکھ روپے اس کا تو 2 ماہ کا وعدہ ہے، تو آپ ابھی تو 3-4 دن گزرے ہوئے، آپ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو والد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح اس کو نہیں بھیجیں گے تو جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا کہ وہ پیسے جو ان کو دینے تھے وہ 1-2.5 لاکھ روپیہ ان کا حق مہر تھا، وہ آپ نے میرے سامنے ان کو دیا، تو باقی تو آپ کے پیسے تھے، آپ کا 2 ماہ کا وعدہ ہے۔ تو پھر اس نے کہا اچھا نہیں چلو کوئی بات نہیں، پھر میں کل کو بھیج دوں گا۔ پھر اس سے بات نہیں آئی۔ تو پھر اس وقت تک تو کہ اس کے فون جو اس کا رابطہ تھا وہ ہوتا رہا، لیکن جب میں نے پیسے دینے سے انکار کیا تو اس نے جو ہے پھر فون بھی بند کر دیا۔ پھر ہم نے تھانے کے اندر بھی اطلاع دی، تو انہوں نے جو ہے اس کو شعیب شاہ کو بلایا۔ پہلے تو یہ اس نے بہانے لگائے، کئی دن تو یہ نہیں آیا، روزانہ ہم چلے جاتے تھے لیکن یہ نہیں وہاں پیش ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن گیا تو انہوں نے جو ہے اس کو پکڑ کے اندر دیا اور اس کے اوپر کہا کہ آپ کے اوپر FIR دیں گے، آپ کو پرچہ دیں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ بڑا زیادتی کی ہے، کیونکہ نہ وہ اس کا ایڈریس بتا رہا ہے کہ میں نے کہاں جا کے کروایا، نہ یہ بتاتا تھا کہ جو میں نے رشتہ کروایا ان کا جو ایڈریس وغیرہ کہاں، وہ کچھ نہیں اس نے بتایا، کہتا کہ میں وہ ڈھونڈ کے بتاؤں گا۔ تو ان کو سمجھ گیا کہ یہ فراڈ ایک گروپ ہی ہے، یہ کسی کو نہیں کہ ہمارے سامنے نہیں کریں گے۔ تو پھر جب ان کو کہا کہ ہم آپ کے اوپر جو ہے پرچہ دیں گے ہم، تو پھر یہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ وہاں وعدہ کر کے اس کا بنوئی ہے وہ اس کو اپنی ضمانت کے اوپر جو ہے 8 دن کی ضمانت کے اوپر لے کے آگے ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، اور وہ ہمیں کہنے لگا اس کا بنوئی کہ میں تو محمد یتون شاہ صاحب ہوں، بڑا نیک کار ہوں،
बस ये हमारा बच्चे से गलती हो गई, वरना हम कहाँ ऐसे काम करते हैं। वो सारा का सारा जो उनकी जो हिफाजत के लिए ना वो आगे होता है इनकी, क्योंकि वो घर का एड्रेस भी वही अपना उसका दिया हुआ है, जिसका तो अपना तो इनके घर ही नहीं है। तो यानी कि जब भी वो किसी मामले के अंदर वो आता है, फिर वो वहाँ ज़माना दे के अपने शो करके हम तो मस्जिद हम ऐसे कैसे काम करते हैं, उनको छुड़वा के ले जाता है। तो उसके बाद भी जो पहले के थाने वालों से भी ये काबू नहीं आएगा, वो कहते कि हमारा जो उन्होंने हमसे भी कहा कि ये हमारा वकूआ नहीं है, अगर हम ज़्यादा कार्रवाई करेंगे तो या तो ऊपर से आर्डर लेके आए कि फिर हम करेंगे, तो वरना हम अपने तौर पर अगर करेंगे तो फिर हम इनके हमारे ऊपर भी कोई पकड़ने वाले हमें भी है। तो फिर हमने जो है इसीलिए फिर मीडिया के ऊपर ही आना मुनासिब समझा कि हम इतने हमारे पास वसाइल नहीं है कि वज़ीर आला के पास सीधे जा सके या किसी बड़े अफसर के पास जा सके, और हमारे मिलने के इतने कोई असबाब भी नहीं है, इसीलिए हमने जो है इस मीडिया को इस्तेमाल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लें कि इतने इंटरव्यू चल चुके हैं, अब तो तकरीबन हर अफसर जो है इस वीडियो को इनके देख चुका होगा। तो हमारी दरख्वास्त ही है कि वज़ीर आला साहब से भी दरख्वास्त है कि ऐसे गैंगों को जो पकड़ा जाए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। ये जो अपने बच्चियों के साथ ऐसे मामलात करते हैं पैसों के लिए, तो जब दूसरे के घरों के अंदर जाती हैं वो किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी जो फ़ीस तय हुई थी वो 3.5 लाख थी 4.5 लाख थी, 1 लाख रुपये उन्होंने चेक लिया था हमसे। और आपने दे कितने दिए थे पैसे? 3 3.5 उसने ये इकट्ठे लिए थे, 10,000 रुपये पहले एडवांस लिया था। 10,000 रुपये जब चली गई थी फिर इसने मुझे कहा था कि मैं आपको ला के दूंगा। 10,000 रुपये बाद में दोबारा भी लिया। इतनी ज़्यादा फ़ीस एक निकाह करवाने वाला कंसल्टेंट ले रहा है, तो इससे शक वगैरह नहीं हुआ आपको? शक बाज़ हमने ऐसे भी मामला देखे थे कि वह जिन लोगों का हक महर ज़्यादा होता है, तो हमने बाहर का कुछ रिश्तेदार भी हमारे थे वहाँ, उन लोगों ने शादी की तो उनके घर में जो बस रहे थे। हमने इसलिए कहा, और इसकी फ़ीस भी ये यही कह रहा था कि जो फ़ीस जो इधर मेरी भी है, मुझे हमें हक महर ही वो 2.5 लाख नहीं बताता था ना, वो कहता कि हक महर 3.5 लाख है। 50,000 मेरी फ़ीस है, 50,000 रुपया उधर जो है हमारे जो आदमी वहाँ है, वो क्योंकि वो इसलिए हमने उधर रखा हुआ कि आपके साथ कोई इनके मामलात गलत ना हो जाए, इनके तफ्तीश वगैरह पूरे करके हमको वो रिश्ता देता है, इसलिए हम उसको फ़ीस देते हैं। इसलिए हम मुतमिन थे कि जब दोनों तरफ से ऐसे मामलात हैं तो हमारे साथ कैसे फ्रॉड हो सकता है। और फिर ये सबसे बड़ी बात, ये वीडियो जब चलाता है रिश्ते वगैरह की, उसके ऊपर ऐसी हदीस वगैरह पढ़ता है, ऐसे जैसे आलिम के कहता है कि ये तो कोई आलिम दीन है और ये ऐसे कैसे गलत काम कर सकता है। लेकिन हम इसीलिए इसके जो कह लें कि फ्रॉड के अंदर आ गए। सही है, तो ये अभी वो गायब है? अभी वो गायब ही है क्योंकि वो मिलता नहीं है, कि कभी वो फ़ोन बंद कर लेता है, कभी कुछ मामलात हैं, बस वो काबू हमारे काबू नहीं आ रहा कि अब जो है हुकूमत ही उनको काबू कर सकती है हम सबको, बल्कि। सही है, तो मुझे ये बताएं कि शादी जब आपकी होती है और पहली रात का क्या किस्सा है जो कि आपसे सिगरेटें की भी डिमांड की जाती है, तो ये क्या कहानी? वो असल में सफ़र एक लंबा था, तो सफ़र से जब आई थी पता था कि हमारे साथ जब रही 3 4 घंटे, तो उसने सिगरेट तो नहीं पिया था, हालांकि वो तो तकरीबन 10 मिनट के बाद सिगरेट पी लेती थी, 20 मिनट के बाद सिगरेट पीती थी, बाद का तो बल्कि ज़्यादा एक भी कम ही पीती थी, जब भी पीती थी 2 या 3 इकट्ठी पीती थी। तो बल्कि अगर शॉपिंग के लिए कहीं जाना भी होता था ना, वो जिनके पहले 2 3 सिगरेट पी के फिर जिनके फ्रेश होकर फिर चलती थी। तो जब पहली दफ़ा आपसे मांगा तो आपको हैरानगी हुई होगी? हैरानगी तो ज़ाहिर बात है कि औरत, फिर हमारे जो कह लें कि हमारे घर का माहौल इस तरह का था, हमारी बच्चियाँ जो माशाल्लाह वो हाफ़िज़ हैं, माशाल्लाह बड़ी ने हिफ़्ज़ किया हुआ, अब छोटों को भी घर के अंदर पढ़ाती है। तो हमारा तो मामला था, बाकी आम औरतें भी नहीं पीती। तो बाद में हमें पता चला कि हम तो एक बात हो गई, घबरा गए थे शायद ये नशा वगैरह ही करती होगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये उसके पेट की गैस थी, इसलिए वो उसने सिगरेट पीनी शुरू कर दी। उसकी असल में कहती कि मेरी मम्मा भी पीती थी, उसके साथ पीते-पीते मुझे भी आदत पड़ गई। क्या बात है! तो मुझे ये बताएं कि कितने दिन आप आपस में रहे हैं और फिर जब वो गई है तो वो कैसे गई है, उसका क्या किस्सा? उसका यही है कि वो सिर्फ मिलने के बहाने वो मुझे मुँह बना के, वो इनके रोने वाला मुँह बना के मेरे सामने बैठ जाती थी कि मुझे सिर्फ 1 दिन के लिए भेज दो। तो मैंने कहा चलो भई इतनी दूर से आई है, चलो इसको साथ में भेज देता हूँ, 1 दिन की कौन सी बात है। तो हालाँकि हमारा ये घर का ऐसा माहौल था कि बच्चों का भी मामला था कि बच्चों के ऊपर भी कोई नहीं था। तो फिर भी हमने कहा चलो कोई नहीं, एक बार चले जब मिल के आ जाएँ तो फिर। सही है, तो आपने अपने सारा कारोबार बेच के फिर शादी की और उसके अलावा टोटल तकरीबन आपको कितना नुकसान हो गया होगा, माली नुकसान? माली नुकसान तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए जो है तकरीबन वो हुआ नहीं। बल्कि जो कमरे वगैरह सारे थे वो भी सारी की सारी, जो एक छत भी एक आखिर के अंदर एक रह गई थी, वो भी वो बेच के वो सारी शॉपिंग करके गई, और वो साथ नकद भी 10,000 रुपये नकद भी लेके गई थी।
जाते हुए उसमें से हमें 5,000 रुपया दे के गई थी, इनके ये खर्चे के लिए चलो रख लो। इतना तो हुस्न ज़न था उस। हाँ जी। तो ये बताएं कि उसकी उम्र कितनी थी और आपकी ये क्या पहली शादी थी या कौन सी? दूसरी शादी थी हमारी, उसकी उम्र तकरीबन वो 25 साल थी उसकी उम्र। हाँ जी। आप यानी पहले तो बड़े खुश होंगे कि माशाल्लाह दूसरी शादी कर रहे हैं और 25 साल की उम्र। और ये भी है जिनके ये भी था कि ना, इनकी बात करने का उसका अंदाज भी कुछ ऐसा था कि यानी कि जैसे कहते थे कि मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन हमें लगता था कि शायद वो ये ना कुछ ज़्यादा पढ़ी हुई है। तो यानी कि पढ़ने का यानी कि बात का अंदाज ही यही था। तो हो सकता है बाद लोग ये भी कहते हैं कि ये यानी कि यूनिवर्सिटी से लड़कियों को इसको अपने साथ मिला लेते हैं, उनके जाली माँ बाप बनाकर। हमें तो किसी दोस्तों ने ये भी बताया कि उनको यानी कि खर्चा पानी दे देते हैं कि हम ना 2-3 दिन के लिए, फिर हमारी जिम्मेदारी है आपको लेके आएंगे। हो सकता है ऐसा निकले, भाई ये तो है कि सामने आएंगे तो उनकी सारी तफ्तीश होगी। यकीनन शहजाद साहब मुझे ये बताएं कि यकीनन ऐसा एक खातून जो कि पहले से ही एक फ्रॉड ग्रुप का हिस्सा हो तो वो जितने दिन भी घर रहेगी तो यकीनन आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, कोई ना कोई माली के अलावा भी कोई चीज़ लेके जा। यानी कि उनका हर यानी कि फ्रॉड ग्रुप जो होता है ना, उनका अंदाज फ्रॉड का मुख्तलिफ होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो शादी करते हैं तो बाज़ का आते घर वालों को नशा वगैरह दिया, जहाँ जहाँ चीज़ें पड़ी हैं सारी उठा के ले जाते हैं। लेकिन इनका कुछ जो अलहदा जो है कि वो अंदाज है, ये यानी कि कह लें कि एक मोहब्बत के चक्कर में आकर जो शोहर को भी उसके अंदर लेके बच्चों को भी यानी कि ऐसे मुतमिन करती हैं कि बच्चों को यानी कि ऐसे उनके साथ मामलात करती हैं। हम समझते हैं कि यानी कि हमें जो बीवी मिली बड़ी अच्छी मिली, तो यानी कि उनको सबको चक्कर में लेके जो है फिर मिलने के बहाने जो चीज़ है वो ज़ाहिर बात है जब उसने शोहर को अपने हाथ में कर लिया तो कह लें कि वो सारे का हाथ अपने घर का निज़ाम भी उसको दे देगा। तो वो हर चीज़ जब उसके पास है तो वो फिर भी किसी वक्त भी लेके जा सकती है उसको। ये तो अभी आपको इस फ्रॉड को सोचते हुए क्या कैसे जज्बात होते हैं, हंसी आती है या गुस्सा आता है, क्या क्या सोचते पहले तो हमें यानी कि काफ़ी देर तक तो काफ़ी परेशानी रही थी। तो यानी कि क्योंकि हमने जो अपना कारोबार भी जो अपना बंद किया सिर्फ इसीलिए था कि एक हमारे घर का एक अच्छा माहौल बन जाए, चलो पढ़ी लिखी आ जाए। क्योंकि शेख साहब कहता था कि 12 पढ़ी है 14 पढ़ी है, यानी कि हमें मतलब कि ऐसे अंदाज में वो हमें प्रपोजल भेजता था। तो लेकिन बाद में पता चला कि नहीं जी ये तो पढ़ी नहीं है, लेकिन बातों से इसके लगता था कि ये पढ़ी है। अल्लाह जानता है कि वो असल मामला उनका क्या है। हैं? तो आखिर में मुझे ये बताएं कि हुकूमत से इदारों से क्या अपील करते हैं आप? अब हमारी यानी कि सारे अदारों से यही अपील है कि यानी कि वज़ीर आला साहब से, अमरीकन नवाज़ साहब से भी दरख्वास्त है कि या तो वो खुद किसी थाने को जो है वो ऑर्डर कर दे, या सीपीओ साहब हैं हमारे, डीपीओ साहब हैं, इनसे दरख्वास्त है कि ये या किसी थाने को फ़ौरन जो है हुक्म जारी करे कि उनको फ़ौरन जो पकड़ कर, ताकि वो किसी को कोई और नुकसान ना कर दें। क्योंकि अभी तो वो फ़िलहाल वो पैसों का नुकसान कर रहे हैं। तो यानी कि ये जब ये ऐसा मामला जब खुल जाता है, फिर जब आदमी कह ले कि एक किसी हाथ से निकल जाता है, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। इनके किसी को कोई दूसरा नुकसान ही ना पहुँचाए, इसलिए इनके ऊपर जो फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए। ये यकीनन नाज़रीन शहजाद साहब की भी यही अपील है हुकूमती इदारों से भी कि इनको भी इंसाफ दिया जाए और इस तरह के सादा लो इंसानों को जो फ्रॉड की में मुलविस शख्स हैं उनको जब अपनी गिरफ्त में लेते हैं और उनसे फ्रॉड करके जाते हैं उन पे भी उनके लिए भी सदेबाब होना चाहिए। फ़िल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।